عظیم البرکت مجدد دین و ملت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور کوچا کوچا مہکتی ہے وہاں بوئے قمیص، کوچا کوچا مہکتی ہے وہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشے کنان عرب۔ حضرات محترم، ایک اللہ کے نبی ہیں جس کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، جس کو دنیا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتی ہے۔ پورے قرآن کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف مکمل سورت کریمہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے مکمل ذکر، آپ اگر ان کے ترجمہ تشریح کھولیں گے تو مکمل ان کا ذکر ہے۔ ایک اللہ کے نبی ایسے ہیں جن کے خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے۔ مصر میں ہے، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹے میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں میں سے ایک کے 10 شہزادے ہیں، ایک کے 2 ہیں، اس میں سے جس کے 2 ہیں اس میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ مصلحت ربی ہے، آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، بھائیوں نے آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، مگر اللہ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ ایک عورت ہے جس کا نام زلیخا ہے، زلیخا۔ جب بات یوسف علیہ السلام کے حسن کی آتی ہے تو پھر زلیخا کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہوئے، اللہ کے نبی ہیں لیکن خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، فدا ہو گئی۔ عورتوں نے کہا کس پر دل دے بیٹھی ہو؟ غلام پر دل دے بیٹھی ہو؟ وہ تو غلام ہے، غلامی میں آتے آتے مصر کے بازار تک پہنچا ہے، ابھی مصر کا بادشاہ بنا نہیں ہے، مصر کے بازار میں بکا ہے، پھر اللہ نے بادشاہت عطا کی۔ مصر کے بازار تو کہا غلام کو دل دے بیٹھی ہو، زلیخا نے کہا تھا وہ غلام نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے حسن کا امام ہے۔ کہا کیا خوبی ہے ان کے اندر جو یہ غلام پہ دل دے بیٹھی ہے؟ زلیخا نے کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ مصر کی عورتوں کو بلایا، دعوت کیا سب کو، دعوت کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں کہا، ایک پھل دیا، چھری دی، کہا کہ ابھی نہیں کاٹنا، جب سامنے سے یوسف علیہ السلام آئے پھر کاٹنا۔ اب تاریخ کے اوراق دیکھیں گے کہ جب جمال یوسف آیا تھا سامنے، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنا فریفتہ ہو گئے کہ دیکھنے کے وقت سب نے پھل کو چھوڑ دیا، انگلیاں کاٹ ڈالی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ جمال یوسف ہے، اور میرے سرکار کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ میرے سرکار کی ذات کیا ہے؟ میرے سرکار کو اگر دیکھ لیتے تو حال کیا ہوتا کہ سرکار جب جنگ بدر میں ہے، جنگ بدر ہے، تاریخ میں آیا ہے سب سے پہلی اسلامی جنگ بدر ہے، جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 3000 سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا، مگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی کا جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ پتہ یہ چلا آپ اگر جنگ احد میں جائیں گے
मुसलमानों की तादाद 600 से 700 थी और न जाने कितने हजार काफिर थे। अल्लाह अगर आगे बढ़ेंगे, जंगों की तादाद देखेंगे तो आप जहां भी देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद मुख्तसर थी, मगर अल्लाह ने फतेह अता फरमाया था। पता यह चला कि हक वालों की तादाद हमेशा कम हुआ करती है, बातिल की तादाद हमेशा ज्यादा हुआ करती है। मगर अल्लाह तबारक व तआला बातिल को कामयाब नहीं करता, मोमिन को कामयाब करता है। तो जंगे बदर हुई थी। जंगे बदर में काफिरों के तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ललकारा और कहा, उतबा व शैबा ने कहा था, हल मिन मुबारिज़िन या मोहम्मद, हल मिन मुबारिज़िन, अगर कोई है तो हमारे मुकाबले में करो। 3 सहाबे रसूल आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत मुगीरा और एक सहाबी रसूल, 3 आगे बढ़े। नाम नसब पूछा तो नसब पूछा तो वो अंसारी, कहा कि इससे हमारा कोई जोड़ नहीं है, ये हमारे मुकाबले का नहीं है। हमारे मुकाबले का तो वो होगा जिसके घर में, जिसके खानदान में हाशमी घराने का खून शामिल होगा। इतना कहना था मेरे सरकार को। फिर दोबारा कहा कि ये हमारे जोड़ का नहीं है, आप किसी और को भेजिए। फरमाते मेरे सरकार ने आवाज लगाई तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला, सैयदुश शुहदा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, करमल्लाहु वजहुल बाब खैबर जिसको कहते हैं, और एक सहाबी रसूल है जिसका नाम वो सहाबी रसूल और है। फरमाती ये तीनों आगे बढ़े। खानदान पूछा तुम्हारे खानदान का क्या नाम है, सबने अपना अपना तारुफ करा, कहा अब मुकाबले के लिए है। 3 काफिर उधर से, मुसलमानों की 3 तादाद इधर से। अल्लाह अल्लाह, अब सामने लड़ाई हो रही है। हजरत हमजा ने एक को पकड़ा है, चंद मिनट में उसका काम तमाम कर दिया। हजरत अली ने एक को पकड़ा, उसका काम चंद मिनट में तमाम कर दिया। मगर वो सहाबे रसूल जो बूढ़े थे, जो सहाबे रसूल बहुत कमजोर थे, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो लड़ते लड़ते जख्मी हो गए, हजरत अली ने देखा उस खान काफिर का काम तो तमाम कर दिया, मगर उसको अपने कांधे पर उठाकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर गए। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके गए और ले जाने के बाद कदमों में मेरे आका के हैं। अर्ज करते, आका अगर इसी हाल में मेरा इंतकाल हो गया तो क्या मुझको शहादत का मकाम मिलेगा? अर्ज करते मेरे मुस्तफ़ा, हाँ तू तो शहीद कहलाएगा। अर्ज करते सहाबे रसूल बूढ़े सहाबी है, अर्ज करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह आज वो दिन जो अबू तालिब ने कहा था वो आज मैं अपनी निगाहों के सामने देख रहा हूँ कि जब मेरे मुस्तफ़ा को काफिरों ने कहा था अबू तालिब के सामने क्या आप अपने भतीजों को मेरे हवाले कर दीजिए, तो अबू तालिब ने कहा था मैं इनके आगे और पीछे से लड़ता रहूंगा मगर अपनी जान की कुर्बान कर दूंगा, खून से लथपथ हो जाऊंगा मगर अपने भतीजों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आज वो दिन आया है कि मैं अपनी जानें कुर्बान कर दूंगा मगर मुस्तफ़ा पर कोई आंच ना आने दूंगा, मगर मुस्तफ़ा पर कोई खरोच नहीं आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो हुस्न था जिसको देखे तो मिस्र की औरतें उंगलियां काट डाले, मगर मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न वो है जिसको देखे तो सहाबा गर्दनें कटाने को तैयार हो जाया करता है, जिनको देखे तो सहाबा गर्दनें कटाने को तैयार हो जाता है। ये मेरे सरकार का हुस्न है। मेरे सरकार के हुस्न की मिसाल कौन दे सकता है? आला हजरत फरमाते हैं, ऊंचा ऊंचा महकती है यहाँ हुए कबीस, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे कनाने अरब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। बाप को क्या पता था बेटे का इंतकाल हो चुका, भेड़ियों ने खा गया, लेकिन वो अल्लाह के नबी है और नबी कहते उसको है जो गैब की खबर रखता है। 40 साल तक बेटे से दूर रहे, 40 साल तक। और कौन बेटा था? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी है, खूबसूरती की मिसाल है। 40 साल तक बेटे से अलग रहे। भाइयों ने कहा कि उनको भेड़ियों ने खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई, आपकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। आखिर कनान वो जगह है जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। वहां से जब वहां कहत साली हुई तो लोग मिस्र आए, उनके भाई मिस्र आए। मिस्र आने के बाद अनाज लेने के लिए तो भाइयों को देखकर पहचान गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई पहचानते नहीं थे, चेहरे पर नकाब डला हुआ है। फरमाते जब गए तो किसी तरह
भाइयों से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद कहा कि अब्बा का हाल क्या है? कहा कि आपकी याद में इतना रोए ना कि आंखों की बीनाई चली गई है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक जुब्बा अता किया और कहा मेरे अब्बा की आंखों में लगा देना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब गए ना रास्ते से तो अभी 3-4 मील की दूरी पर है, जुब्बा उन लोगों के हवाले है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुब्बा भाइयों को दिया और कहा जाके अब्बा की आंखों में लगा देना। अभी 3 मील 4 मील की दूरी पर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में बैठकर फरमाया आज मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, आज मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह, जब जुब्बा लेकर गए आंखों से लगाया तो जो आंखों की बीनाई चली गई थी ना वो वापस आ गई। अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली के जो जिस्म अक़दस से लग जाता है ना वो हमारे लिए तबर्रुक बन जाया करता है। हम इसीलिए तो रबीउल नूर शरीफ के महीने में और गौसे आज़म के महीने में कभी गौसे आज़म की नियाज़ का एहतमाम भी करते हैं और उनकी ज़ियारतें भी करते हैं। उनके तबर्रुकात ताकि इसलिए नहीं कि अल्लाह अल्लाह, इसलिए करते हैं कि हमको उससे अक़ीदत है और मेरा अक़ीदा है कि इनको अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि ये बज़ाते खुद तो है जो ज़ात बड़ी है, लेकिन इनके जिस्म से जो चीज़ लग जाता है वो भी फैज़याब कर दिया करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे से मुलाकात हुई। ये तो बात थी कि याकूब अलैहिस्सलाम के जुब्बे में अल्लाह ने वो पावर दिया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई। मगर आओ मुस्तफ़ा का मदीना देखो। एक शख्स है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, और यहूदी तौरेत की तिलावत करता है। तौरेत पढ़ रहा था, पहले सफ़े में देखा तो उसने नाम मोहम्मद को देखा, सरकार के नाम को देखा। सरकार के नाम को देखा तो उसने पहले सफ़े को निकाल कर फेंक दिया। दूसरा सफ़ा निकाला तो दूसरे सफ़े में 2 जगह नाम था, दूसरे सफ़े को भी निकाल दिया। तीसरा सफ़ा निकाला तो 3 जगह 4 जगह नाम पाया। उसने कहा अगर इसी तरह निकालते रहो तो तौरेत के वरक़ खत्म हो जाएंगे, नाम मोहम्मद खत्म होने वाला नहीं है, नाम मोहम्मद खत्म होने वाला नहीं है। उसने कहा जब इस नाम को मैंने देख ही लिया है तो क्यों ना उस ज़ात से मुलाकात भी कर ली जाए। वो वहाँ से कूच किया, मदीना शरीफ आया, और जब मदीने में पहुँचा तो वैसा वक्त था कि उससे 3 दिन कबल मेरे सरकार इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके। 3 दिन पहले मेरे सरकार दुनिया से कूच कर गए थे, आपका विसाल हुआ था। मस्जिद नबवी में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, सहाबा की आंखों में आंसू है, सहाबा रो रहे हैं, हज़रत अली सबको समझा रहे हैं। इतने में वो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और कहा अस्सलामु अलैकुम या अबुल कासिम। इतना कहना था कि सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई। जो सहाबा अब तक अपनी आंसू को दबा रहे थे, अपने दिल पर काबू कर रहे थे और ज्यादा रोने लगे। हजरत अली ने फरमाया कि नादान है कौन तू जो हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। अर्ज करते हैं कि मैं यहूदी हूँ और मैं सरकार से मिलने के लिए आया हूँ। उसने कहा जानते हो आज कौन सा दिन है? मेरे सरकार आज से 3 दिन पहले कूच कर चुके हैं। इतना कहना था कि वो यहूदी फूट फूट कर रोने लगा और अर्ज करते हैं कि अल्लाह अकबर। वो अर्ज करते कि काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता तो अच्छा था, अगर पैदा किया था तो फिर मैं तौरेत के वरक़ न पढ़ता था तो अच्छा था, पढ़ लिया था तो नाम मोहम्मद से मोहब्बत हो गई, उसकी जियारत कर लेता तो अच्छा था। आज आलम यह है कि जिससे मोहब्बत हो गई आज उसकी जियारत तक नहीं कर सकता। कहा कि मैंने सरकार को तो देखा नहीं है, जरा रौज़े अक़दस दिखा दो जिसके ताल्लुक से मेरे सरकार ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र अनवर की जियारत कर ली मेरी शफ़ाअत उस पर वाजिब हो गई। उस क़ब्र अनवर की जियारत तो करा दो। क़ब्र अनवर के पास है, सरकार के रौज़े अक़दस की मिट्टी आपने सर पर रख रहे हैं। कहा कि अच्छा एक काम करो, मैंने सरकार को तो देखा नहीं है, जरा सरकार का कोई कपड़ा हो जुब्बा हो तो मुझे अता कर दिया जाए। सरकार के गुलाम सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के घर पहुंचे। खातून जन्नत की आंखों में आंसू थी। दरवाजे पे दस्तक दी, का कौन है? का मैं अहले बैत का गुलाम सलमान फारसी हूँ। का क्यों आया है? का सरकार का जुब्बा लेने के लिए आया हूँ। क्या किसकी मजाल है कि सरकार के जुब्बे मुबारक को पहने? पूरा वाक़िया सुनाया। सरकार के जुब्बे को लिया, लेने के बाद
वो यहूदी को ला के दिया, वो यहूदी कभी आंखों से लगा रहा है, कभी अपने सर पर लगा रहा है, कभी अपनी जुबान से बोसा दे रहा है और अर्ज करते अली गवाह है ना, मैं तुम्हारे हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। अल्लाह अल्लाह अब मुझे कह लेने दिया जाए। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बे मुबारक था, जिसको देखने से, जिसको आंखों में रखने से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई। मेरे सरकार का जुब्बे मुबारक वो है जिसको लगा ले तो काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कूचा कूचा महकती है यहाँ बुए कमीज, यूसुफिस्तान है हरी गोशे कनाने अरब, यूसुफिस्तान है हरी गोशे कनाने अरब। अब बात आई सरकार की, रब ने इरशाद फरमाया वक़्फ़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, मुझे चाश की कसम और उस रात की कसम जो रात की कसम के ताल्लुक से। फरमाते हैं उलमाए किराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि वद्दुहा से मुराद सरकार के चेहरे अंबर है, वल्लैल से मुराद सरकार की जुल्फ़े अंबरी है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना हसीन पैदा किया, कितना खूबसूरत पैदा किया। खूबसूरती की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र किया कि कितने खूबसूरत थे, लेकिन सरकार की खूबसूरती का आदर क्या है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती अगर पूछना है तो फिर आयशा सिद्दीक़ा से पूछो। हजरत आयशा फरमाती मैंने ऐसा हसीन और जमील किसी को देखा ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैंने आप जैसा हसीन किसी को ना देखा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने आप जैसा हसीन किसी को ना देखा। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा फरमाते मैंने आप जैसा खूबसूरत किसी को ना देखा। और हजरत हस्सान ने तो हद कर दिया, हजरत हस्सान फरमाते व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हस्सान फरमाते व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐन, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने देखा नहीं है, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा नहीं है। देखता भी कैसे, किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है, किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से बड़ी पैदा किया है, हर ऐब से बड़ी पैदा किया है। यानी अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत हस्सान फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। और हजरत मोहतरम आप दुनिया में पैदा हुए, हम पैदा हुए, दुनिया के जितने करोड़ अरबों लोग पैदा हुए सब रब की मर्जी से पैदा हुआ। जैसे किसी को घोड़ा पैदा होना था घोड़ा पैदा हुआ, किसी को काला पैदा होना था काला पैदा हुआ, कोई सांवला पैदा होना था सांवला पैदा हुआ, किसी को औरत बनना था औरत पैदा होना था। रब ने जिससे चाहा वैसे पैदा किया, रब की जैसी मर्जी थी वैसे पैदा किया। मगर हजरत हस्सान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया और जैसे रब ने सबको चाहा ऐसे नहीं, बल्कि आप जैसा चाहते थे रब ने आपको ऐसा ही पैदा किया, आप जैसा चाहते थे रब ने आपको ऐसा ही पैदा किया। हजरत हस्सान से पूछो, ए हजरत हस्सान, नबी जैसा हसीनो जमील कोई नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, नबी जैसा हसीनो जमील कोई नहीं है। आप मक्का के लोगों को देखे हैं तो फिर बोल सकते हैं, मदीने के लोगों को देखते हैं तो जानते हैं। क्या कभी मदीने के बाहर भी आप गए हैं? अल्लाह अकबर। अमेरिका कितना तरक्की कर चुका, यहाँ भी तो इतना खूबसूरत हो सकता है। जापान इतना तरक्की कर चुका, यहाँ भी तो खूबसूरत पैदा हो सकता है। आपने कैसा कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि नबी जैसा हसीन और जमील कोई नहीं है? आपने इंडिया देखा है, आपने पाकिस्तान देखा है, आपने भूटान देखा है, आपने कैसे कह दिया कि नबी जैसा हसीन और जमील कोई नहीं है? अल्लाह पर ये एक एतराज होता है, अल्लाह पर जब देखा नहीं। अच्छा ये तो बात आपके जमाने की थी, हो सकता है आपके बाद कोई ऐसा पैदा हो जो नबी से ज्यादा हसीन और जमील हो, या आपसे पहले कोई पैदा हो चुका जो नबी से ज्यादा हसीन और जमील हो। आपने कैसे कह दिया कि नबी जैसा हसीन और जमील कोई नहीं है? अल्लाह पर यह मामला आगे बढ़ा। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कहा था कि हसीन और जमील है, हजरत हस्सान ने कहा था नबी हसीन और जमील है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नबी हसीन और जमील है। मगर क्या आपने आगे वाले को देखा है, क्या आपने पीछे वाले को देखा है? तो अल्लाह पर आप दलील ऐसी
دلیل چاہیے جو آگے والے کو بھی دیکھے, جو آگے پیچھے والوں کو بھی دیکھے. تو پھر یہ دنیا والوں کو دیکھیں گے تو یہ چند مختصر سی زندگی, چاہے نبی کے ساتھ 50 سالہ زندگی گزارا ہو, چاہے نبی کے ساتھ 40 سالہ زندگی گزاری ہو, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں تو وہاں جاؤں گا جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا ہے, جس نے حضرت عمر فاروق کو بھی دیکھا ہے, جس نے میرے مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہے, جس نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے, جس نے حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے, جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, وہ پچھلے زمانے کو بھی دیکھا ہے, قیامت تک بھی دیکھے گا. وہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو پلٹ پلٹ کر دیکھا, آسمان کی تہ کو ادھر پلٹ پلٹ کر دیکھا, مگر نبی جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے یک نہ یک بنایا. اللہ پر بولنے والا کون ہے؟ جبریل امی ہے. جبرائیل فرماتے ہیں میں تحت الثری کو یعنی پلٹ پلٹ کر دیکھا, آسمان کے پلٹ پلٹ کر دیکھا, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دیکھنا ہے, مگر نبی جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے, نبی جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. اب جب خوبصورت کی بات آ گئی, میں اگر بتاؤں جبریل کہہ سکتے ہیں, بات عقیدت کی ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پہ ہے, سرکار ایک باغ میں ہے. سرکار باغ میں ہے تو کچھ لوگ آئے کھجور توڑنے کے لیے, کھجور توڑنے کے لیے آئے. اس سے قافلے والے تھے, کچھ قافلہ رکا ہوا تھا, تو سرکار ادھر پہنچے. جب سرکار ادھر پہنچے تو دیکھا کیا کرنے آئے, کہ کھجور توڑنے کے لیے آئے, کھجور کی ضرورت ہے اس لیے توڑنے کے لیے آئے. فرماتے ان لوگ کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا, لال رنگ کا اونٹ تھا. میرے سرکار کو پسند آ گیا. میرے سرکار نے فرمایا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. فرماتے کتنا طے کر دیا, اتنے کھجور دو گے تو پھر عطا کر دوں گا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اونٹ پکڑا اور لے کے مدینے کی طرف رواں ہوئے. سب دیکھ رہے ہیں اور جب جاتے رہے, دیکھتے رہے, جاتے رہے. جب سرکار نظر سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے, یار ہم تو اس کو پہچانتے. میرے سرکار فرمایا میں ٹہلنے کی نسبت سے آیا تھا, ہاتھ میں کچھ لے کر نہیں آیا ہوں, میں ابھی جا رہا ہوں, واپس پیسے بھجوا دے رہا ہوں, یا جو آپ کا سامان ہے وہ بھجوا دے رہا ہوں. اب یہ دیکھتے رہے. جب سرکار نظر سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے, یار ہم نے اونٹ تو دے دیا, نہ اس کو پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں, ہے کون, آنے والا لے کر تو گیا ہے, اگر نہیں آیا تو. اتنا سننا تھا. ایک عورت تھی پردے کی آڑ میں, اس نے خبردار ایسا مت بولو, جس کو چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پر فرشتے زمین پر اتر پڑے ہیں, وہ کبھی ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور سن لو, اگر وہ پیسہ لے کر نہیں آئے تو میں پیسہ دینے کو تیار ہوں. یہ میرے سرکار کا حسن و جمال ہے, جس کو دیکھ کر آدمی دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جانا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال واقعی میں حسن کی مثال ہے, مگر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن وہ ہے کہ نہ جانے کتنے پردوں میں سرکار کو چھپا رکھا ہے. اگر سرکار چہرے سے پردہ ہٹا دے تو پھر عالم کیا ہوگا. تبھی تو رئیس القلم فرماتے ہیں کہ ایک دل تبدیل کر کے لباس بصر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں کے درمیان بشری لباس اختیار کیے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اوصاف و کمالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں جب چہرے کی بات آئی تو رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجى والضحیٰ, اور جب بات زلف عنبرین کی آئی تو واللیل اذا سجى فرمایا. جب سرکار کے رفتار کی بات آئی, سرکار معراج پہ گئے تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ. آپ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. سرکار نے کنکریاں پھینکی تو رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سرکار کے ہر ایک چیز کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. اور سرکار کا عالم کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار بیٹھ کر اپنے جوتی مبارک کو سرکار پیوند لگا رہے, سل رہے, اور حضرت عائشہ فرماتی میں چکی کاٹ رہی تھی تو دیکھا سرکار کے چہرے اقدس سے جو پسینہ ٹپک رہا ہے اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہوئے سرکار فرماتے عائشہ کیا دیکھ رہی؟ سرکار آپ
का जो पसीने मुबारक ले देख रहे हैं ना, उससे नूर की शुआएं बिखर रही है, ये मेरे सरकार का है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं अगर कभी हमको ज़रूरत पड़ती थी खुशबू लगाने की तो फिर इधर उधर नहीं जाते, सरकार के पसीने मुबारक को लेके जाया करते थे। और लेके आलम ये होता था कि सरकार का पसीना, ये दुनिया की खुशबू जो है ये चंद मिनट में इसकी खुशबू खत्म हो जाए, मगर सरकार का पसीना वो है जिस गली से गुजरे वो गली महकने लगती थी। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा फरमाती हैं कि मैं सरकार की एक दिन आया वाक़या ये था कि मैं बैठी हुई थी सरकार दो आलम और कुछ सी रही थी, रात का वक्त था, चिराग जला के कुछ सी रही थी, अपनी गुदरी को सिल रही थी। इतने में रात में तेज आंधी, थोड़ी सी हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया। और चिराग बुझना था कि हाथ से सुई छूटी, अब वो न जाने कहाँ गिरी, अंधेरे में मिल नहीं रही थी। इतने में सरकार तशरीफ लेकर आई, और सरकार जब तशरीफ लेकर आती है ना तो फिर कमरा मुनव्वर हो जाया करता है। फरमाते आयशा क्या ढूंढ रही हो? अर्ज करते आका मेरे हाथ से सुई छूट गई है, वो मिल नहीं रही है। फरमाते सरकार की दरबार मुबारक जरा सा हिले थी, जरा सा बाहर हुआ कि कमरा इतना मुनव्वर हो गया कि हजरत आयशा फरमाती कि गुमशुदा सुई मिल चुकी है, गुमशुदा सुई जो गिर गई थी ना वो मुझे मिल गई। अल्लाह, यही बात है, हमारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इस महीने में सरकार कसरत से इबादत किया करते थे।